about light. That branch of physics is called the optics. Optics physics की ब्रांच है जिसमें हमें लाइट के बारे में स्टडी करना है. Then we see the one phenomena of light, that is reflection of light. What is the reflection of light? Reflection of light means if this is the interface or reflecting surface xy and this is the normal, then if the light is incident from one medium to another medium, if the light is incident from one medium to another medium, it bounces back to the same medium. This phenomena is called the reflection of light. We see in the last video. Then we see the laws of reflection. What is the laws of reflection? First law is I equal to R. This is the first law of reflection. I equal to R. I means angle of incidence. This is the angle of incidence. And R means angle of reflection. This is the angle of reflection. And these two angles are equal. This is the first law of reflection. Second law, the incident ray and reflected ray are opposite side of normal and all three lie in a same plane. This is the second law. Second law क्या है? Incident ray, reflected ray and normal all three lie in a same plane, and this is the second law of reflection. Then we see the plane mirror. Plane mirror. What is the definition of a plane mirror? Plane mirror is the mirror whose reflecting surface is in the form of a plane. Plane mirror is the mirror whose reflecting surface is in the form of a plane. This is the reflecting surface. This is the reflecting surface, and other surface is the polished surface. And other surface is the polished surface, and other side is used as the reflecting surface. This is called the plane mirror. Then we see the nature of image formed by plane mirror. First, the plane mirror always produce a virtual image, and if it is a virtual image, then it is arrayed image, and it is at the same size. Again, it is at the same distance, and it is laterally inverted. Laterally inverted. Laterally inverted means in the plane mirror the image produce lateral inversion. Lateral inversion means in the plane mirror left right side it changes. Left right side is changes. If we raise our left hand in the mirror, then the mirror shows right hand is its image. अगर हम मिरर के सामने अपना लेफ्ट हैंड रेज करते हैं तो मिरर हमें अपना राइट हैंड रेज हुआ बताता है. इसलिए लेफ्ट राइट पोजीशन चेंज होती है, इसलिए हमें क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्टेड इमेज मिलती है. लेफ्ट राइट साइड सिर्फ चेंज हो रही है, टॉप टू बॉटम चेंज नहीं हो रहा, यानी सिर्फ लेफ्ट पोजीशन राइट में आ रही, राइट पोजीशन लेफ्ट में आ रही. दिस इज द नेचर ऑफ इमेज formed by the plane mirror. Then we see the two equation. First is this is the glancing angle theta g. What is the equation of glancing angle? Glancing angle is equal to 90 minus I. Glancing angle is equal to 90 minus I. Then we see the deviation due to reflection. This is the direction of incident ray, and this angle is called the angle of deviation due to reflection. This is the direction of incident ray. Direction of incident ray. And this is the reflected ray. And this is the incident ray. And these two, the angle between these two rays is called the angle of deviation due to
what is the nature of plane? What is the nature of image formed by plane mirror? The nature of image is virtual, erect, same size, same distance, and is laterally inverted. Now in this video we see the spherical mirror. ये वीडियो में हमें स्फेरिकल मिरर देखना है। स्फेरिकल मिरर, now how we define spherical mirror? Spherical mirror is the mirror whose reflecting surface is in the form of a sphere. Spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is in the form of a spherical. Here one surface is a polished surface. One surface is the polished surface and other surface is used as a reflecting surface. This is a reflecting surface and this is the polished surface. Spherical mirror किसे कहते हैं? ये spherical mirror जो मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का शेप स्फीयर के जैसा होता है और स्फेरिकल के जैसा होता है, वो मिरर को हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये मिरर में एक सरफेस को हम पॉलिश करते हैं और दूसरा सरफेस हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए यूज कर सकते हैं। वन सरफेस इज अ पॉलिश एंड अदर सरफेस वी यूज एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स है। फर्स्ट है कॉन्केव मिरर। फर्स्ट इज अ कॉन्केव मिरर एंड सेकेंड इज द कॉन्वेक्स मिरर। ये स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स है। फर्स्ट है कॉन्केव मिरर, सेकेंड है कॉन्वेक्स मिरर। नाउ हाउ वी डिफाइन द कॉन्केव मिरर? कॉन्केव मिरर किसे कहते हैं? कॉन्केव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। Concave mirror is a spherical mirror whose outer side is polished and inner side is used as a reflecting surface. अगर हम ये spherical mirror का ये पोर्शन कंसीडर कर दिए, समझो हमने इसे लेबलिंग दे दी A और B। अब ये AB पोर्शन में आउटर सरफेस पॉलिश है और इनर सरफेस हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए यूज कर रहा है, तो ये मिरर को क्या कहते हैं? कॉन्केव मिरर कहते हैं। अगर हमने डायग्राम निकालते हैं, दिस इज ए बी, ए और बी। आउटर सरफेस पॉलिश्ड सरफेस है। आउटर सरफेस इज अ पॉलिश्ड सरफेस एंड इनर सरफेस इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इनर सरफेस हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए यूज करना है और आउटर सरफेस हमने पॉलिश किया है, तो ये मिरर को हम क्या कहते हैं? कॉन्केव मिरर कहते हैं। कॉन्केव मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। ये मिरर कौन से चीज से बने वाला है? ये स्फेरिकल मिरर से बने हैं। कॉन्केव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर whose outer surface is polished and inner surface is used as a reflecting surface. That mirror is called the concave mirror. Now next convex mirror. Convex mirror concave mirror के opposite है। Opposite यानी convex mirror is the spherical mirror. Convex mirror is the spherical mirror in which inner side is polished. This is the inner side. ये inner side अगर हम पॉलिश कर दिए और outer side we use as a reflecting surface and this outer side we use as a reflecting surface, then this mirror is called the convex mirror, we denoted by XY. ये XY क्या है? convex mirror है। इसे convex mirror क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे inner side हमने पॉलिश कर दी है और outer side हमें reflecting surface के लिए यूज करना है, इसलिए ये surface को हम क्या कहते हैं? convex mirror कहते हैं। अगर हमें convex mirror की डायग्राम निकालना है, we draw in this way. This is a XY. इनर साइड इज अ पॉलिश, ये पॉलिश किया हुआ सरफेस है और आउटर सरफेस हमें क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। यानी ये सरफेस हमें रिफ्लेक्शन के लिए यूज करना है, ये सरफेस हमें रिफ्लेक्शन के लिए यूज करना है, इसलिए हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं।
इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्केव मिरर हो गया। These are the two types of which mirror, spherical mirror. Then we have to see some definition. These definition you have already learned in the 10th standard. First definition is the center of curvature. First क्या है, center of curvature. It is denoted by the symbol C. First definition है center of curvature. It is denoted by the symbol C. ये और जो definition हम अभी जो ले रहे हैं वो रिवीजन है, क्योंकि आप सबने ये definition 10th standard में या 9th standard में ऑलरेडी लर्न करे थे। फर्स्ट है center of curvature. Its symbol is the C. How we define center of curvature? Center of curvature, it is the center of the reflecting surface. It is the center of the spherical mirror. Center of curvature, it is the center of the spherical mirror of which mirror is the part. Center of curvature is the center of the sphere of which mirror is the part. जो sphere से हमने ये दो मिरर बनाए वाले हैं, वो sphere का center यानी क्या कहते हैं, center of curvature। One more time, what is the center of curvature? Center of curvature is the center of the sphere of which mirror is the part. ये sphere से हमने एक कॉन्केव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया है। वो sphere का जो center है, वो center को हम क्या कहते हैं, center of curvature। Next definition है pole. Next is the pole. It's denoted by the symbol P. Now how we define a pole? Pole is the center of a spherical mirror. Spherical mirror कितने हैं, दो है, एक है कॉन्केव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ये spherical mirror का जो center होगा, वो center को हम क्या कहते हैं, pole कहते हैं। अब ये कॉन्केव मिरर है, this is a concave mirror, this is a concave mirror। ये कॉन्केव मिरर का अगर हमने यहाँ पे सेंटर ले ली, ये सेंटर, ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर का ये सेंटर है, ये सेंटर को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, और पोल का सिंबल क्या है, P। समझ में आया? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोल? पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। दिस इज द स्फेरिकल मिरर, व्हिच मिरर इट इज, कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब ये कॉन्वेक्स मिरर का अगर यहाँ पे समझो सेंटर है, अगर यहाँ पे समझो सेंटर है, तो ये सेंटर को हम क्या कहते हैं, पोल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोल? पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, और जो स्फीयर का सेंटर है उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। Before that, we learn radius of curvature. Radius of curvature. Its symbol is a capital R. ये first हम ये radius of curvature देखेंगे, बाद में हम principal axis देखेंगे। First next क्या है, radius of curvature, its symbol क्या होता है, R होता है। Now we define radius of curvature. Radius of curvature is इसके नाम में ही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी ये क्या हो जाता है, सेंटर हो जाता है। इसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी क्या होगा, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज द पार्ट। जो स्फीयर से मिरर बने वाले हैं, वो स्फीयर की रेडियस यानी क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये सेंटर है, ये सर्कमफरेंस है। अगर हमने ये लाइन ज्वाइन कर दी है, तो इसे हम क्या कर देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देंगे, और इसका सिंबल क्या है, R। इसकी और एक डेफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब याद रखो, ये कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर ऐसा बना, कॉन्वेक्स मिरर के राइट साइड को सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है। कॉन्वेक्स मिरर के राइट साइड को सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर की ये राइट साइड हो गई,
कॉन्वेक्स मिरर के कौन साइड में सी आ गया है, कॉन्वेक्स मिरर के राइट साइड में सी आ गया है। तो हमने कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे निकाल दिया। कॉन्वेक्स मिरर का ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के राइट साइड पे ही हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। अगर हमने ये कंप्लीट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। ओके, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की दूसरी डेफिनेशन क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज, ये पोल होगा। ओके, अगर हमने इसे नाम दे दिए, यहाँ पे देखो ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर ये दो लाइन हमने ज्वाइन कर दिए तो ये दोनों लाइन को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर होगा तो ये पोल यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे ज्वाइन कर दिए तो ये क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है। यानी दिस इज आर यानी आर मींस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के दो डेफिनेशन है। फर्स्ट क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर of which mirror is the part. Second definition क्या है, it is the distance between a pole and center of curvature. pole और center of curvature के बीच में जो distance है वो distance को क्या कहते हैं, radius of curvature कहते हैं। याद रखिए convex mirror का center of curvature हमेशा right side पे ही होगा। अब ये concave mirror है, यहाँ पे concave mirror है। concave mirror के कौन-से साइड में C आ गया, concave mirror के लेफ्ट साइड में C। ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड में सी है, तो ये कॉन्केव मिरर है। ये कॉन्केव मिरर होगा तो हमें अगर सी निकालना है तो कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड में सी निकालना है। कॉन्केव मिरर के कौन से साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है, लेफ्ट साइड में। अगर हमने ये स्फीयर कंप्लीट कर दिए तो ये क्या हो जाता है, स्फेरिकल मिरर हो जाता है। याद रखिए कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है और कॉन्वेक्स मिरर के राइट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर हमने ये लाइन ज्वाइन कर दिए तो ये लाइन को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसका सिंबल क्या है, आर। दिस इज द डेफिनेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ नेक्स्ट वी सी आवर प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, it is the straight line passing through the pole and center of curvature. This is the pole, this is the center of curvature. अगर हमने ये straight line निकाल दी तो ये पूरे ही straight line को, ये straight line को हम क्या कह सकते हैं, center of, क्या कह सकते हैं, principal axis कहते हैं। The straight line passing through the pole and center of curvature. This is the pole and this is the C. ये दोनों में से जो लाइन अगर हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिए तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पे ये कॉन्वेक्स मिरर का होगा, अब ये कॉन्केव मिरर। अगर हम ये लाइन ऐसे एक्सटेंड कर दिए तो ये लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है फोकस। फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। नाउ हाउ डिफाइन फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर डेफिनेशन है, समझो ये कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर यानी आउटर साइड हम पॉलिश कर दिए हैं और इनर साइड हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए यूज करना है। This is the outer side we polish. We call it as AB. AB is a concave mirror. अगर ये पोल होगा, ये पोल होगा तो concave mirror का सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन से साइड रहता है, लेफ्ट साइड रहता है, तो ये C होगा। ओके, और ये जो लाइन B और C में से जाएगी वो लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ये डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। देन व्हाट इज द PC हियर, PC इज द r यानी क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब फोकस हमें डिफाइन करना है। हाउ डिफाइन फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे। अगर ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल
पैरेलल हो गए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को ये दो इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये रे यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये साइड हमने क्या करे वाले हैं, पॉलिश करे वाले, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज आल्सो रिफ्लेक्टेड रे, ये दो रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। देन इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इंटरसेक्ट्स एट अ सिंगल पॉइंट। रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों ही रे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। वो पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और ये पॉइंट इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रहता है। एंड दिस पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये पॉइंट हमेशा मिरर के सामने रहता है, इसे क्या कहते हैं, फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। What is the definition of focus of concave mirror? If the incident ray is parallel to the principal axis, then after reflection, these are intersects at a single point, and this point is located along the principal axis and which is in front of mirror. ये point principal axis पे होगा और mirror के सामने होगा, तो ये point को हम क्या कहते हैं, focus कहते हैं। और फोकस का सिंबल हम यूज करते हैं कैपिटल एफ। फोकस सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ हो जाएगा, यानी ये एफ क्या पे हो जाएगा, फोकस। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पी क्या है, पोल है। ये डायग्राम हमने किसके लिए निकाली है, कॉन्केव मिरर के लिए। दिस इज द फोकस। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है फोकल लेंथ। नेक्स्ट इज द focal length, it is denoted by symbol small f। याद रखिए कैपिटल F फोकस का सिंबल है और स्मॉल f फोकल लेंथ के लिए हम यूज कर सकते हैं। डोंट राइट कैपिटल F फॉर फोकल लेंथ एंड स्मॉल f फॉर द फोकस। ओके, नाउ ये इसके नाम में क्या है, लेंथ है, इसके नाम में क्या है, लेंथ। लेंथ यानी क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये कौन सी दो चीज का डिस्टेंस है, नाउ हाउ डिफाइन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन अ पोल एंड फोकस। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन अ पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। देयरफॉर दिस pf इज कॉल्ड स्मॉल f। ये जो डिस्टेंस हो जाएगा इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल f, यानी क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। समझ में आया फोकल लेंथ? व्हाट इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन अ पोल एंड फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये r है और ये स्मॉल f है। r यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, स्मॉल f यानी क्या है, फोकल लेंथ। अब ये r और f में रिलेशन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी डिस्टेंस है और फोकल लेंथ यानी भी डिस्टेंस है। ये दोनों में रिलेशन क्या है, याद रखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द ट्वाइस फोकल लेंथ, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से डबल रहती है। समझो अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 5 × 2 कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। समझ में? और ये फॉर्मूले से अगर हमें f निकालना है, ये फॉर्मूले से अगर हमें f निकालना है, हम भी राइट f इज इक्वल टू r बाय 2 और f इज इक्वल टू हाउ मच, r बाय 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ये दोनों में से कौन सा ही एक फॉर्मूला याद रखो, दूसरा हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। ओके, अगर हमें डायग्राम में पूरी क्वांटिटी अगर निकालना है तो हम कैसा निकाल सकते हैं, ये पे देखो, अगर हमें ड्रॉ करते हैं बोलो अलग अलग क्वांटिटी निकालना है तो हम कैसा निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखो
दिस इज अ कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर होगा, ये क्या होगा, होल हो जाएगा। अब कॉन्केव मिरर के कौन से साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, याद रखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और ये लाइन क्या हो गई, ये लाइन हमें क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये लाइन हमें क्या कहेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगी। आप P और C यानी R है और R 2F है यानी F के डबल है, तो याद रखो P और C के सेंटर में F लिखना है, P और C के सेंटर में F लिखना है, क्योंकि ये डिस्टेंस के डबल है। अगर ये F हो गया, ये स्मॉल f होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। ओके, दिस इज फॉर द